என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। இந்த நேரத்திலே ஒரு விசை கூட உங்கள் மத்தியிலே தேவ வசனத்தை கொண்டு வரும்படியாக தேவன் செய்த கிருபைக்காக தேவனுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். आज के दिन में फिर एक बार परमेश्वर का वचन को आपके बीच में लेके आने के लिए परमेश्वर ने इस मौका को मेरे जीवन में दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। இந்த நாளிலே ஒரு 4 விதமான காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். आज के दिन में 4 प्रकार की बातों को हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। அதாவது அழுக்கும் கந்தையுமான நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் ஒரு சுத்தமான வாழ்க்கைக்கு கடந்து செல்ல வேண்டிய அவசியத்தை சொல்லி आज हम तो यही बातों को बोलते हुए मतलब गंदा और कचरा भरा हुआ जीवन से एक अच्छा जीवन में आने के बातों को बोलते हुए அந்த நல்ல வாழ்க்கையிலே கனி கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை குறித்தும் நாம் பார்க்க போகிறோம். और कुछ अच्छा जीवन को पकड़ते हुए मतलब फल देने वाला जीवन के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। மூன்றாவதாக கனி கொடுப்பது மாத்திரமல்ல, நாம் பெற்றிருக்கிற அந்த salvation-ஐ ரட்சிப்பை மற்றவர்களுக்கு கொண்டு போக வேண்டிய அவசியமும் उसके बाद तीसरा केवल फल देने वाला जीवन नहीं है, मैं हम लोग प्राप्त किया हुआ इस परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किया हुआ इस उद्धार को दूसरा तक ले जाने वाला बातों को இன்னும் அதிலே நாம் வளர்ந்து வருகிற காரியத்தை குறித்து நான் இந்த நாளிலே நாம் பார்க்க போகிறோம். और उसी में बढ़ते हुए जाने के उस अनुभव को भी हम लोग आज देखने जा रहे हैं। நேரம் உண்டானால் இதை முழுவதுமாக இன்று பிரசங்கிப்பேன். यदि समय मिलेगा तो पूरी तौर से इस बातों को मैं प्रचार करूंगा। இல்லை என்றால் வரும் வாரத்திலே இதை குறித்து நான் உங்கள் மத்தியிலே நான் பிரசங்கிக்க விரும்புகிறேன். यदि नहीं है तो आने वाला सप्ताह में इसका कंटिन्यूएशन को मैं प्रचार करूंगा। எனக்கு அருமையானவர்களே, ரிக் வாரன் இப்படியாக சொல்கிறார். रिक वारन नाम के एक व्यक्ति ने उन्होंने ऐसा कह रहा है, You are born by his purpose आप तो परमेश्वर के योजना के तहत जन्म हुए हैं and for his purpose. उसी के मकसद के उसी के योजना के लिए ही हम जन्म लिए हैं। அதாவது ரெண்டு காரியம் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. 2 प्रकार का बातें उन्होंने कहा है। அவருடைய திட்டத்து நிமித்தம் நீங்கள் பிறந்திருக்கிறீர்கள். परमेश्वर का योजना के अनुसार हम लोग जन्म लिए हैं அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றும்படியாக பிறந்திருக்கிறீர்கள். और उस योजना को पूरा करने के लिए हम लोग जन्म लिए हैं। ஆனால் சாத்தானானவன் நம்முடைய காரியங்களை அறிந்திருக்கிறான். लेकिन शैतान ने हम लोग का काम को जानता है। யாரெல்லாம் ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை வாழுகிறார்களோ அவர்களை குறித்து சாத்தானுக்கு ஒரு கவலை இல்லை. कोई भी वो एक साधारण जीवन बिताने वाला के ऊपर शैतान के लिए कुछ परेशानी नहीं है। அவன் சாத்தானானவன் தேவனுடைய திட்டத்தை குறித்து தேவனுடைய திட்டம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலே வைத்திருக்கிற திட்டத்தை குறித்து அவன் அறிந்திருக்கிறான். शैतान ने जानता है परमेश्वर एक एक व्यक्ति के ऊपर रखा हुआ योजनाओं को शैतान ने जान के रखा है। அவன் தேவனுக்கு விரோதமானவன், वो तो परमेश्वर का विरोधी है, தேவனுடைய பரிசுத்தத்துக்கு விரோதி, परमेश्वर का पवित्रता के लिए विरोधी है। அவன் தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு அவன் எவ்வளவு முயற்சிக்க கூடுமோ அவ்வளவு முயற்சிக்கிறவன். उन्होंने क्या करता है, परमेश्वर के लोग परमेश्वर का दास दासी परमेश्वर को छोड़ के कितना भी दूर जाने के लिए कितना प्रयास करना है उतना वो करेगा। அவன் தன்னுடைய கரெக்ட் நேச்சரை நம்முடைய ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் வைக்க விரும்புகிறார். उन्होंने क्या है दूरता चतुराई के उस गुण को एक एक व्यक्ति के अंदर रखना चाहता है। நம்முடைய விழுந்து போன அந்த கேரக்டரை ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் வைக்க விரும்புகிறார். गिरा हुआ उस स्वभाव को हर एक व्यक्ति के अंदर रखना चाहता है। அவன் முழுவதுமாக இந்த வேர்ல்ட் சிஸ்டத்தையே தன்னுடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ளே வைத்து தன்னுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்ற விரும்புகிறார். सारे दुनिया को अपने कब्जा में रखते हुए उसी के इच्छा को उन्होंने पूरा करने के लिए चाहत करता है। இதன் மூலமாக ஒவ்வொருவரையும் தேவனுடைய சித்தத்திலிருந்து விலக்க விரும்புகிறார். इसी प्रकार के बातों को उन्होंने करते हुए परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के इच्छा से दूर करने के लिए प्रयास करता அது है। மாத்திரமல்ல, केवल वो नहीं है, அவன் முதலிலிருந்தே நாம் பார்க்கிற போது தேவனுடைய காரியத்துக்கு கீழ்ப்படியாத ஒரு காரியத்தை அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வர விரும்புகிறான். और भी हम लोग शुरू से इस बातों को हम लोग देख पा रहे हैं वचन में क्या है, शुरू के समय से ही परमेश्वर का बातों को अनाज्ञाकारिता में ले चलने के बातों को हर एक जीवन में लेके आना चाहता है। அவன் நம்முடைய தகப்பனாருடைய வீட்டிலிருந்து நம்மை பிரித்து கொண்டு போக
விரும்புகிறார். उन्होंने क्या करता है, हम लोग का पप्पा के घर से हम लोग को दूर करने के प्रयास में रहता है. நம்முடைய வாழ்விலே ஆசை அபிலாஷைகளை கொண்டு வந்து நம்மை தேவனுடைய அன்பை விட்டு பிரிக்க விரும்புகிறார். तो शैतान ने क्या करता है, हमारा जीवन में आशा अभिलाषाओं को लेके आते हुए परमेश्वर का प्रेम से वंचित कर देता है. கீழ்ப்படியாமை கொண்டு வந்து அவருடைய பிரசன்னத்தை விட்டு பிரித்து விடுகிறார். अनाज्ञाकारिता को लेके आते हुए परमेश्वर को उपस्थिति से अलग कर देता है. அவன் பல பயாலஜிக்கல் டிரைவ்ஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வந்து தேவனுடைய அன்பிலிருந்து நம்மை பிரிக்க விரும்புகிறான். நம்மை ஒரு கனியற்றவர்களாக மாற்ற விரும்புகிறார். वो क्या करता है, हमें शारीरिक अभिलाषाओं में हमारा जीवन में अनेक बातों को लेके आते हुए परमेश्वर का प्रेम से और परमेश्वर के लिए फलदायक जीवन बिताने से हमें वंचित कर देता है. துரோகங்கள் கேட்டின் மகனினாலே துரோகங்கள் மிஞ்சி போகிறது. क्या है, नष्ट होने वाला उस बेटा के द्वारा द्रोह मतलब विरोध का बातें द्रोह का बातें बढ़ते जाता है. எனக்கு அருமையானவர்களே, அவன் தன்னுடைய எல்லா விதமான தந்திரங்களையும் ஒவ்வொரு மனுஷன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு மேலும் செயல்படுத்த விரும்புகிறான். वो शैतान ने क्या प्रयास में रहता है, सारे युक्तियां निकालते हुए परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ लोगों को ऊपर उसको डालने के लिए प्रयास में रहता है. அவன் நம்முடைய சரீரத்தை அவன் உபயோகப்படுத்துகிறான். उन्होंने हमारा शरीर को इस्तेमाल करता है, நம்முடைய எண்ணங்களை உபயோகப்படுத்துகிறான். हमारा सोच को इस्तेमाल करता है, நம்முடைய பேச்சுக்களை உபயோகப்படுத்துகிறான். हमारा बोली को इस्तेमाल करता है, நம்முடைய நடத்தைகளை உபயோகப்படுத்துகிறான். हमारा चाल चलन को इस्तेमाल करता है. ஒரு நேரத்திலே நாம் செய்வது தவறு என்று அறியாதவர்களாக மாறி போய் விடுகிறோம். एक समय आता है हम लोग जो कर रहे हैं गलत बोल के हम लोग अंदर समझ नहीं रहता, ऐसा बदल जाते हैं. எனக்கு அருமையானவர்களே, अनेक நேரத்திலே நாம் பிள்ளைகளாக இருக்கிற நேரத்திலே நாம் செய்வது சரி என்று நமக்கு தோணும். हम लोग मेरे प्रियो, कभी-कभी हम लोग को ऐसा लगता है, छोटा उम्र में हम लोग सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ सही करके हम लोग को दिखता है. அதாவது ஒரு பேரண்ட்ஸ் சொல்லுகிற அந்த காரியங்கள், தலைவர்கள் சொல்லுகிற காரியங்கள் தவறாக தெரியும். अनेक समय में हम लोग का माता पिता लोग बोलने वाले बातें, बड़े लोग बोलने वाले बातें, अधिकारी लोग बोलने वाले बातें हम लोग के लिए गलत करके दिखता है. ஏனென்றால் நான் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் अनेक தவறுகளை செய்து அனுபவப்பட்டு அடி வாங்கி தான் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறோம். क्योंकि बड़े लोग या माता पिता हो, बड़े हो, कोई भी हो, हम लोग के जीवन में अनेक बातों को करते हुए मार खाते इस स्थान तक हम लोग पहुंचे हैं. எங்களுடைய தகப்பனார் தாயார் சொல்லுகிற நேரத்திலே உங்களை போல நாங்களும் எதிர்த்து நின்றிருக்கிறோம். ऐसे ही मेरा पापा मम्मी ने बोलने के समय हम लोग भी ऐसे ही विरोध में खड़े होते ஆனால் थे. இந்த நேரத்திலே அது எவ்வளவு பெரிய தவறான காரியம் என்று எங்களுக்கு புரிந்ததினாலே அந்த தவறை எங்கள் பிள்ளைகள் செய்யக்கூடாது என்று நாங்கள் அதை சொல்லுகிறோம். लेकिन हम लोग अभी इतना बड़ा होने के बाद हम लोग अनुभव में पता चलता है हम लोग कितना गलती किए हैं. इसलिए मेरा माता पिता ने चिताया करके बोलने के सोचने के समय वही गलती को मेरा बच्चा लोग नहीं करना बोल के चिताते हैं. அதனால் இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு ஒரு காரியம் தேவைப்படுகிறது. आज के समय के बच्चा लोग के लिए एक बात का आवश्यकता है. அது என்னவென்றால் இண்டிபெண்டன்சி. आज के बच्चा लोग के लिए स्वतंत्रता का आवश्यकता है. தாய் ஒன்றுமே சொல்லிவிடக் கூடாது. मम्मी कुछ नहीं बोलना है, தகப்பனார் ஒன்றுமே சொல்லிவிடக் கூடாது. पापा कुछ नहीं बोलना है, யாராவது மற்றவர்கள் ஒன்றும் சொல்லிவிடக் கூடாது. और दूसरा लोग कुछ नहीं बोलना है. ஏனென்றால் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் சுதந்திரமாக செயல்பட வேண்டும் என்ற விருப்பம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்கிறது. इसका कारण यही है, मेरा अंदर में ऐसा एक बातें छिपा हुआ है, हमको कोई कुछ नहीं बोलना है, मैं स्वतंत्रता के साथ अपने मनमानी में जीवन बिताऊंगा करके एक बातें छिपा के रखे हैं. என்னுடைய பிள்ளைகளை குறித்து எங்கள் குடும்பத்தில் இப்படியாக சொல்லுகிறார்கள். मेरे बच्चा लोग के बारे में मेरा परिवार में ऐसा बोलते हैं, நீ இந்த பிள்ளைகளை ரொம்ப கண்ட்ரோல்ல வளர்த்து விட்டாய், நீ இப்படி செய்திருக்க கூடாது. अरे लोग तो बोलते हैं तुम लोग तो अच्छा कंट्रोल में बच्चा लोग को संभालने, ऐसा नहीं करना चाहिए. இப்பொழுதுதான் இவர்கள் அதாவது உன்னுடைய கண்ட்ரோலில் இருந்து வெளியே போனாதான் பிள்ளைகள் மாதிரி இருக்கிறார்கள். उन लोग क्या है, तेरा कंट्रोल से तेरा कब्जा से बाहर जाने से ही बच्चा लोग के रूप में है. அப்போது நான் ஒரு காரியத்தை நினைத்து பார்த்தேன். तब मैंने एक बातों को सोचने लगा, அதாவது மனிதனாக மாறி இருக்கிறார்கள் என் பிள்ளைகள் என்று சொல்வார்களானால் यदि एक मनुष्य के रूप में बदला है तो
मेरे बच्चे लोग बोलेगा तो நீ உன்னுடைய கண்ணோட்டம் என்ன? तेरा सोच, तेरा विचार क्या है? தண்ணி அடிக்கிறவன் தான் மனிதன்னு நினைக்கிற ஒரு உலகம் இது. क्या दारू पीना वाला ही मनुष्य करके सोचने वाला दुनिया है? அது அவர்கள் தான் மெச்சூர்ட் என்று சொல்லுகிறது. उन लोग परिपक्व करके बोलते हैं. அதாவது பெண்ணோடு கூட திருமணத்துக்கு முன்பு வாழுகிறது தான் அவர்களுடைய மெச்சூரிட்டி என்று சொல்லுகிறார்கள். लड़की के साथ लड़का के साथ शादी होने के पहले जीवन बिताना ही एक मैच्योरिटी करके बोलने वाला दुनिया है. என்று சொல்லி தனியாக வாழுவது அதுதான் மெச்சூரிட்டி என்று சொல்லுகிறார்கள். लिविंग टुगेदर बोल के शादी के पहले लड़का लड़की एक साथ पति पत्नी के रूप में जीना ही परिपक्व होने के इन लोग का अर्थ है. सिगरेट குடிக்கிறவனை மெச்சூர்ட் என்று சொல்லுகிறது. सिगरेट लेने वाला को परिपक्व करके बोलते हैं. ஜெபிக்கிறவர்கள், प्रार्थना करने वाले, சினிமா பார்க்க விரும்பாதவர்கள், सिनेमा देखने के लिए इच्छा नहीं करते हैं, பாவம் செய்ய விரும்பாதவர்கள், पाप करने के लिए इच्छा नहीं करते हैं. இவர்களை குறித்து உலகம் சொல்லுகிறது இவர்கள் they are not matured at all. சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருக்கிறாங்க. प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के साथ का जीवन बिताने वाले, पवित्रता के साथ जीवन बिताने वाला के बारे में दुनिया यही बोलता है. इन लोग को जीने के लिए नहीं जानता है. इन लोग तो छोटा बच्चा लोग का समान है. உலகம் அந்த ஜனங்களை தான் மனிதனே பார்க்குது. दुनिया ऐसे ही लोगों को मनुष्य करके देखता है. ஆனால் ஏன்னு சொன்னா அந்த முழு அந்த சோஷியல் சிஸ்டத்தையும் வேர்ல்ட் சிஸ்டத்தையும் சாத்தானவன் தன்னுடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ளே கொண்டு வச்சிருக்கிறான். इसका कारण यही है, सारे सोशल सिस्टम को शैतान ने दुनिया के सारे बातों को अपने कब्जा में रखा है. அதனால ஜனங்கள் வந்து அவனுடைய பார்வையில தான் இந்த உலகத்தை பார்ப்பாங்க. इसलिए ऐसा दुनिया के लोग शैतान के नजर में ही इस दुनिया को देखते हैं. அப்படி செய்யாதவன் அவருடைய பார்வையிலே ஒரு பைத்தியக்காரன். ऐसा उन लोग का नजर में अच्छा नहीं दिखने, दुनिया का अनुसार नहीं दिखने वाले पागल लोग हैं. எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே, உலகம் ஏன் இந்த பாவத்தை என்டோர்ஸ் பண்ணுகிறது என்றால் உலகம் சாத்தானின் கையில் இருக்கிறதுனாலே. मेरे प्रियो, क्यों दुनिया ने इस पाप में भरा हुआ है, पड़ा हुआ है? कारण इस दुनिया शैतान के हाथों में है. எனக்கு அருமையானவர்களே, தேவனை விட்டு பிரிப்பது மாத்திரம்தான் சாத்தானுடைய தந்திரம். मेरे प्रियो, शैतान का युक्ति यही है, परमेश्वर से अलग करना. உலகத்தின் ஜனங்கள் இன்று அவனுடைய தந்திரத்துக்குள்ளே மாட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். दुनिया का लोग आज शैतान का युक्ति में पाए जा रहे हैं. அது மாத்திரமல்ல, தேவனை அறிந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய நாமிலே அநேகரும் இப்படியாக சாத்தானுடைய பிடியிலே தங்கி இருக்கிறார்கள். केवल दुनिया का लोग नहीं है, परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, परमेश्वर का लोग परमेश्वर को सेवा करने वाला करके बोलने वाला भी शैतान का युक्ति में कब्जा में पाए जा रहे हैं. எனக்கு அருமையானவர்களே, இங்க ஒரு மகனை குறித்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். एक बेटा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ. அவன் தன்னுடைய தகப்பனாருடைய வீட்டிலே சுதந்திரமாக இருந்தான். उन्होंने क्या किया? अपने पापा के घर में एक स्वतंत्रता के साथ जीवन को बिताते आया. நான் ஒரு காரியத்தை நினைப்பதுண்டு. मैं एक बात को बारंबार स्मरण करता हूँ. யாருக்கும் சுதந்திரம் வந்து தன்னுடைய வீட்டில மாத்திரம்தான். ये कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता अपने ही घर में मिलता है. நான் விரும்புகிற ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன். मैं तो आप लोग अपने क्या चाहत करते हैं उस ड्रेस को पहन सकते நான் हैं. விரும்புகிற சாப்பாடை சாப்பிடுவேன். मैं क्या चाहता हूँ उस खाना खा सकते நான் हैं. விரும்புகிற நேரத்துல டீ குடிப்பேன். मैं चालक करने के समय चाय पी सकते हैं. நான் விரும்புகிற நேரத்துல நான் சாப்பிடுவேன். मैं कब चालक करता हूँ उस समय खाता நான் हूँ. விரும்புகிற நேரத்துல டிவி பார்ப்பேன். मैं कब चाहता हूँ उस समय में टीवी देखता நான் हूँ. விரும்புகிற நேரத்துல பைபிள் படிப்பேன். मैं कब चाहते हैं उस समय में बाइबल நான் पढ़ते हैं. விரும்புகிற நேரத்துல ஜெபிப்பேன். मैं चालक करने के समय प्रार्थना कर सकते நான் हैं. விரும்புகிற நேரத்துல நான் உபவாசிப்பேன். मैं चालक करने के समय उपवास कर सकता ஆனா हूँ. நான் வேற வீட்டுல இருக்கும்போது यदि मैं दूसरा के घर में रहता हूँ, என்னுடைய அந்த சுதந்திரம் இருக்காது. मेरा स्वतंत्रता नहीं रहता है. என்னுடைய வீட்டுல இருக்கிற சுதந்திரம் இருக்காது. मेरे घर में मिलने वाला वो स्वतंत्रता नहीं मिलता. நான் விரும்புகிறத நான் சாப்பிட மாட்டேன். मैं मेरा इच्छा के अनुसार हम खा नहीं நான் सकते. மற்றவங்களுடைய விருப்பத்தின்படி நடப்பேன். मैं दूसरा का इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा. ஆனா இந்த காலத்து பிள்ளைகள் என்ன நினைக்கிறாங்க? लेकिन इस समय के बच्चे लोग क्या चाहत करता है? அதாவது உண்மையான சுதந்திரம் வீட்டுல இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க. वो लोग चाहते हैं सच्चा स्वतंत्रता घर में नहीं है करके सोचते हैं. இந்த ப்ராடிகல் சன், அதாவது கெட்ட குமாரனுடைய வாழ்க்கையில நடந்தது இதுதான். यही है इस उड़ाव पुत्र के जीवन में होने वाला घटना यही है. He want independency. उन्होंने स्वतंत्रता को चाहत किया. அவன் தன்னுடைய வாழ்விலே தன்னுடைய வாழ்க்கை
दिया। அவன் என்ன செய்யறான்னா தன்னுடைய வீட்டுல அவனுக்கு நடக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் அடிமைத்தனமா தெரியுது. उसको क्या लग रहा है अपने ही बाप का घर का बात है, उसी के लिए एक मतलब एक गुलाम के रूप में उसको दिख रहा है। டேடி வந்து ஹாஸ்டல்ல இருந்தான். डैडी ने हॉस्टल में था। அங்க ஹாஸ்டல்ல படின்னு சொல்றதுக்கு ஆளு கிடையாது. वहां तो पढ़ो करके बोलने के लिए कोई नहीं है। அங்க வந்து உங்களுக்கு டைம் உண்டு, அந்த நேரத்துல படிச்சுக்கிடணும். हॉस्टल में एक समय देते हैं, उस समय में उन लोग पढ़ना है। படிக்கிறாங்களா இல்லையா, எவ்வளவு படிச்சிருக்காங்கன்னு கேக்குறதுக்கு ஆள் இருக்காது. पढ़ा नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा है करके पूछने के लिए कोई नहीं रहता। நாளைக்கு எக்ஸாம் நீ இன்னைக்கு படிச்சு முடிச்சிட்டியான்னு கேக்குறதுக்கு ஆள் இருக்காது. कल तेरा एग्जाम है क्या, आज पढ़ाई खत्म कर दिया करके पूछने के लिए कोई नहीं நீ रहता। எவ்வளவு லேப்டாப் நீ யூஸ் பண்ற, எவ்வளவு போன் யூஸ் பண்றன்னு கேக்குறதுக்கு ஆள் இருக்காது. तुम कितना लैपटॉप में बैठा है, कितना फोन में बैठा है, पूछने के लिए कोई नहीं है। எத்தனை மணிக்கு தூங்குற, எத்தனை மணிக்கு எழும்புறன்னு கேக்குறதுக்கு ஆள் இருக்காது. कितना बजे तुम सो रहा है, कितना बजे उठ रहा है करके पूछने के लिए कोई नहीं है। அதாவது காலையில உள்ள சாப்பாடு சாப்பிட்டியா சாப்பிடலையான்னு சொல்லி நேரத்துக்கு நேரம் சாப்பிட்டியான்னு கூட கேக்குறதுக்கு ஆள் இருக்காது. सुबह का नाश्ता किया नहीं किया, नहीं तो पूरा दिन में खाया नहीं खाया करके पूछने के लिए भी कोई नहीं रहता ஆனா है। வீட்டுக்கு வந்த உடனே लेकिन घर में आने के बाद அம்மா கேட்பா, ஏன் இவ்வளவு நேரம் தூங்குற, मम्मी ने पूछेगी क्यों तुम इतना देर सो रहा है, ஏன் இவ்வளவு நேரம் நீ மொபைல் பாக்குற, क्यों इतना देर तुम मोबाइल में बैठा है, போய் குளிச்சிட்டு வா, तुम जाके नहा के आओ, துணியை மாத்திட்டு வா, कपड़ा बदलो, தாடியை வெட்டு, दाढ़ी को साफ करो, முடிய வெட்டு. बाल काटो। இதெல்லாம் அவனை பொறுத்தவரையில அது வந்து ஒரு அடிமைத்தனமா தோணும். इस सब बातें मम्मी लोग घर में बैठ के बोलने के समय उन लोग को रहता है मैं तो एक गुलाम के रूप में घर में पाए जा रहे हैं। அம்மா நான் காலேஜ் படிக்கிற பையன், तुरंत वो बोलेगा मम्मी तो मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, அப்பா நான் காலேஜ் நான் படிக்கிற பையன், पापा मैंने कॉलेज स्टूडेंट है। எனக்கு ஒரு சுதந்திரம் வேணும். उन्होंने बोलेगा मेरे लिए एक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। அதாவது சுதந்திரம்னா என்னன்னு சொல்லி நிறைய விஷயத்தை பேரண்ட்ஸுக்கும் தெரியாது, பிள்ளைகளுக்கும் தெரியாது. तो स्वतंत्रता क्या है करके अनेक समय में माता पिता को भी मालूम नहीं होता है, बच्चा लोग को भी मालूम नहीं எந்த होता है। இடத்துல பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணுமோ அங்க கொடுக்கவும் மாட்டாங்க. कौन सा क्षेत्र में बच्चा लोग को स्वतंत्रता देना चाहिए उसी में नहीं देते हैं। எந்த இடத்துல கண்டிப்பா இருக்கணுமோ கண்டிப்பா இருக்க மாட்டாங்க. कहाँ खंडन करना है वहाँ नहीं करते हैं। நான் ஒரு காரியம் அடிக்கடி சொல்றது உண்டு. मैं तो बारंबार एक बातों को बोलता हूँ। ஒரு சின்ன பிள்ளை, பொம்பளை பிள்ளை, एक छोटा बच्चा வெறும் அண்டர்வேர் மட்டும் போட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறா. आप देखिएगा, छोटा एक साल का बच्चा आप रखिए, केवल जट्टी पहन के घूमते रहती है। அவன் 2 வயசாச்சு அப்படியே தான் ஓடிட்டு இருக்கிறான். 2 साल का उम्र में भी उन्होंने वही की। 5 வயசாச்சு அப்பவும் அப்படிதான் ஓடிட்டு இருக்கான். 5 साल में भी उन्होंने ऐसे ही चल रही है வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறா. क्योंकि घर का अंदर है। இப்போ அவனுடைய வாழ்க்கையில வெட்கம்ன்ற ஒரு காரியமே இருக்காது. अभी उन्होंने उसका अंदर में एक शर्म का बातें नहीं रहता। அது யாருடைய தவறு? அந்த தாய் தகப்பனாருடைய தவறு. वो किसका गलती है? वो माता पिता का गलती है। எனக்கு அருமையானவர்களே, अनेक நேரத்துல எங்க சுதந்திரமா விடணுமோ அங்க விட வேண்டாத இடத்துல நம்ம சுதந்திரத்தை கெடுக்கிறோம். अनेक समय में हम लोग क्या करते हैं, कहाँ स्वतंत्रता देना चाहिए वहाँ देना बिना, कहाँ देना नहीं चाहिए उस समय में हम लोग खोल के छोड़ते हुए बच्चा लोगों का जीवन को नष्ट कर देते हैं। ஆனா எல்லா பிள்ளைகளுக்குள்ளேயும் ஒரு இண்டிபெண்டன்சியை வாஞ்சிக்கிற ஒரு கேரக்டர் உண்டு. ये चीज को हम लोग याद रखने की आवश्यकता है। सब बच्चों के अंदर एक स्वतंत्रता पाया जाता है, சுதந்திரத்தை வாஞ்சிக்கிற ஒரு அனுபவம் உண்டு. स्वतंत्रता को जागृत करते हैं। அது இந்த ப்ராடிகல் சன் அவன் என்ன செய்யறான்னு சொன்னா, கெட்ட குமாரன் என்ன செய்யறான்னு சொன்னா, அவன் வீட்டுல சுகமா இருக்கிறான். अभी देखिएगा, इस उड़ाव पुत्र ने अपने घर में बहुत अच्छा से जीवन बिता रहा। அவன் இப்ப இருக்கிற அந்த மனிதன் என்ன செய்யறான்னு சொன்னா, இப்போ சுதந்திரத்தை வாஞ்சிக்கிறான். घर में तो अच्छा से तो जीवन बिता रहा है, फिर भी वो उसके लिए अकेले जीवन बिताने के एकदम स्वतंत्रता का अपने मनमानी में जीवन बिताने के चाहत उसको हो रहा அவனுக்கு है। இப்ப சுதந்திரம்னா என்னன்னு புரியல. अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है चाहत करने वाला स्वतंत्रता क्या है। ஆனா அவனுடைய நினைவுல சுதந்திரம்னா என்ன? लेकिन उसका सोच में विचार में स्वतंत्रता क्या था? நான் நினைக்கிறதை நான் செய்வதுதான் சுதந்திரம். वो क्या सोचता है, मैं क्या सोचता हूँ वही करना, वही है स्वतंत्रता। இந்தியா இண்டிபெண்டன்ட் ஆகி பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. हिंदुस्तान स्वतंत्र होके बहुत साल हो चुका है। ஆனால் சுதந்திர இந்தியாவிலே நமக்கு ஏன் நீதிமன்றங்கள், நமக்கு ஏன் காவல் கூடங்கள்? स्वतंत्र हिंदुस्तान में क्या चीज के लिए हम लोग के जीवन में
हम लोग का हिंदुस्तान में क्या के लिए पुलिस स्टेशन है, क्या चीज के लिए कोर्ट सब है। எனக்கு அருமையானவர்களே, கவனமாக கவனியுங்கள். मेरे प्रिय ध्यान से सुनिएगा। நாம் சுதந்திர இந்தியா தானே, நாம் சுதந்திரமாக செயல்பட முடியாதா? हम लोग तो सोच सकते हैं स्वतंत्र इंडिया है, क्या हम स्वतंत्रता के साथ जीवन नहीं बिता पाएंगे? இந்தியாவுல இருந்த சுதந்திர இந்தியாவுல இருந்த நம்ம இருக்கிற நமக்கு நம்முடைய இஷ்டப்படி நம்ம நடக்க முடியும் என்ற காரியம் கிடையாது. स्वतंत्र इंडिया में जीवन बिताने वाले हम एक प्रजा लोग अपने इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिता सकते हैं। இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில நம்ம வெளியே போறது கூட அரசாங்கம் சொன்னாங்க நம்ம வெளியே போக முடியும். आज के समय में हम लोग का गवर्नमेंट ऑर्डर देने से ही हम लोग बाहर जा सकते हैं। என்னுடைய மகனை நான் கூட்டிட்டு வர முடியாம இருக்கிறேன். ஏன் சொன்னா சட்ட திட்டங்கள் அவனை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல வர முடியல. मेरा बेटा को अपने घर में हम लेके नहीं आ पा रहे क्योंकि हिंदुस्तान के नियम कानून के चलते हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே, मेरा प्रिय परमेश्वर के लोग, இவன் என்ன நினைக்கிறான்? நான் விரும்புகிறத செய்யறதுதான் சுதந்திரம் நினைக்கிறான். इस लड़का ने सोच रहा है मैं चाहता हूँ उसी को मैं करूंगा, वही है स्वतंत्रता। ஆனா அது சுதந்திரம் அல்ல. लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं है। என்னைக்குமே நமக்கு மேல செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு ஒருவர் இருக்கணும். அதுதான் உண்மையான சுதந்திரம். क्या स्वतंत्रता है? मेरे ऊपर एक व्यक्ति इसको करो इसको नहीं करो करके बोलने वाला, वही है स्वतंत्रता। அதாவது செய்ய வேண்டியதை செய்கிறது தான் சுதந்திரம். क्या करना चाहिए उसी को करना ही स्वतंत्रता है। நான் விரும்புகிறத செய்கிறது சுதந்திரம் இல்ல. मैं चाहता हूँ मेरा मनमानी करना स्वतंत्रता नहीं है। அதாவது சுதந்திர இந்தியாவா இருக்கிறதுனால நான் எனக்கு பிடிக்காத ஆளை போய் நான் கொல்ல முடியாது. ये स्वतंत्र इंडिया होने के चलते किसी को मैं पसंद नहीं करता, उसी को जाके मैं मार नहीं सकता। சுதந்திர இந்தியா இருக்கிறதுனால யாரையாவது போய் அடிக்க முடியாது. स्वतंत्र इंडिया में मैं वास करने के चलते किसी को भी मैं नहीं मार डाल सकता हूँ। நான் செய்யணும் செய்யக்கூடாது என்ற நியமங்கள் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வைக்கப்பட்டிருக்கு. அதுபடி நடப்பதுதான் சுதந்திரம். इसको मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ करके कुछ नियम कानून हम लोग का हिंदुस्तान में बना हुआ, वही है स्वतंत्रता। ஆனா இங்க என்ன நடக்குது? लेकिन इसका जीवन में क्या हो रहा है? தன்னுடைய மனதின்படி நான் செயல்பட முடியவில்லை. अभी उसका घर का अंदर में वो अपने मन का अनुसार वो चल नहीं पा रहा है। என்னுடைய ஆசைகளை நான் முடியவில்லை. मेरे इच्छा को मेरा पापा के साथ रहते हुए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। அதுதான் அவனுக்கு பிரச்சனை. उसका परेशानी यही है। எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, இவனுடைய பிரச்சனை என்ன? इसका परेशानियां क्या है? சின்ன வயசுல இருந்தே அவனுக்கு அந்த ஆத்மாவுல ரிபெலியன் ஸ்பிரிட் இருந்திருக்கும். उसके अंदर में छोटा उम्र से एक विरोध का भावना रहा रहता था। அவன் என்ன செய்திருப்பான்? பயத்தினால தகப்பன் தாய்க்கு கீழ்ப்படிந்திருந்திருப்பான். हो सकता है वो जवानी उम्र समय तक माता पिता का डर के चलते वो चुप के रहा होगा। அது கீழ்ப்படியணும்னு சொல்லி அவன் கீழ்ப்படிச்சிருக்க மாட்டான். वो आज्ञाकारी होने वाला बच्चा का समान जरूर आज्ञाकारी नहीं हुआ होगा। நம்ம நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலும் கீழ்ப்படியணும்னு நம்ம கீழ்ப்படிகிறது இல்ல. ऐसे ही हमारा मसीह जीवन में भी आज्ञाकारी होना है करके आज्ञाकारी नहीं होते हैं। அநேக நேரத்துல நம்ம கீழ்ப்படிகிறதுக்கு காரணம் என்ன? நம்ம கீழ்ப்படியாட்டு தண்டிக்கப்பட்டு விடுவோம்ன்ற பயத்துல கீழ்ப்படிவோம். अनेक समय में हम लोग आज्ञाकारी होने के समान दिखाते हैं क्योंकि हो सकता है दंड मिल जाएगा बोल के ऐसा दिखा देते हैं। ஆகவே இவனு என்னதான் தாய் தகப்பனுக்கு பயந்ததுனால கீழ்ப்படிச்சான். इसलिए ये भी ऐसे ही दिखाया जवानी उम्र तक मम्मी पापा से डर के चलते। ஆனா ஒரு லெவல் ஆஃப் லைஃப் அந்த உடனே எதிர்த்து நின்னுச்சான். अभी एक उम्र आने से वो क्या है अंदर छिपा हुआ उस विरोध को प्रकट करने लगा। இப்ப சொல்றா என்னுடைய சொத்தை பிரிச்சு கொடு. अभी इन्होंने बोल रहा है मेरा बाग मेरा धन दौलत के हिसाब को तुम बाग करके दे दो। நான் இப்போ சுதந்திரவாளி. अभी तो मैं स्वतंत्रता में जी रहा हूँ। நான் சுதந்திரவாளி. இது எனக்கு வர வேண்டிய பங்கு. ये तो मेरा हिस्सा है, ये तो मेरे लिए आना चाहिए। இது எனக்கு பங்கு. ये तो मेरा है। நானா இருந்தா சொல்ல நீ வெளியே போ, உனக்கு நான் ஒண்ணுமே கொடுக்க மாட்டேன். यदि मैं उस स्थान में रहता तो तुम बाहर चले जाओ, मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा। ஆனா அவன் அப்படி நினைக்கல. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। அந்த தகப்பன் அப்படி நினைக்கல. वो पापा ने ऐसा नहीं सोचा। அந்த தகப்பன் என்ன சொல்றா? पापा ने क्या किया? சரின்னு சொல்லி அந்த சொத்தை பிரிச்சு கொடுத்துச்சான். पापा ने क्या किया? उसका प्रॉपर्टी को अलग करके उसी के लिए उसका हिसाब को दे இப்போ दिया। நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா अभी हम लोग देखने के समय லூக்கா 15வது அதிகாரம் लूका 15वां अध्याय 10 இருந்து 32 வரை எழுதப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள். 10वां वचन से लेके 32 तक ऐसा बातें लिखा गया है। அவன் என்ன செய்யறான்? தன்னுடைய சொத்தை கொண்டு போயிட்டு வேசியரிடத்திலே அவன் செலவழிக்கிறான். वो
अपने बाप को लेते हुए वहां वेश्या के पास जाके सारे धन दौलत को खत्म किया। எனக்கு இந்த பாருங்க 12வது வசனம் சொல்லுது, यहाँ लूका 15 अध्याय 12 वचन में ऐसा लिखा है, இளையவன் தகப்பனை நோக்கி, தகப்பனே ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்கை எனக்கு தர வேண்டும் என்றான். क्या है यहाँ छोटा बेटा क्या कर रहा है, पप्पा मेरे बाप को तू मेरे लिए देना है करके बोल रहा है। அப்புறம் என்ன செய்யறான்? 13வது வசனம் சொல்லுது, 13 वचन में लिखा है, படிங்க 13வது வசனம் 13 वचन। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। குக்கர்ம அதாவது துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம் பண்ணி தன் ஆஸ்தியை அழித்து போட்டான்। यहाँ ऐसा लिखा है, कुकर्म के साथ जीवन बिताते हुए सारे धन दौलत को खत्म किया। என்ன கவனமா கவனிங்க, ध्यान से सुनिएगा। அப்பா அவனுக்கு அந்த கேரக்டர் துன்மார்க்கம் முன்னமே இருந்தது। तब तो इसका मतलब यही है, उसका अंदर में उस कुकर्म करने के आत्मा रहता था। முதல்ல என்ன செய்யறான்? सबसे पहले उन्होंने क्या किया, எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கொண்டு सारी बातों को इकट्ठा करते हुए தனக்கு வேண்டிய தனக்கு வேணும்னு விரும்புகிற எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கொண்டு अपने पापा के घर में रहते हुए अपने इच्छा पूरा करने वाले सारे बातों को इकट्ठा करते हुए அவனுக்கு வாழ்க்கையில அவன் துன்மார்க்கத்தை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறான்। अभी उन्होंने क्या कर रहा है, पापा के साथ में जीवन बिता रहा है, फिर भी वो दुष्ट का बातों को इकट्ठा कर रहा है। That time he was silent. उस समय में उन्होंने चुप था, ஆனா சைலண்டா இருந்து துன்மார்க்கத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையில சேர்த்து கொண்டிருக்கிறான்। किसी को दिखना भी ना, चुपचाप रहते हुए दुष्ट का बातों को जीवन में इकट्ठा करते आया। இன்னைக்கு நம்ம ஜெபத்துல நம்ம கேட்டது போல நம்ம என்ன செய்யறோம்னு சொல்லி நமக்கு கணவனுக்கு தெரியாது, மனைவிக்கு தெரியாது, அப்பாவுக்கு தெரியாது, அம்மாவுக்கு தெரியாது, பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது, அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம்। आज हम लोग यही बातों को प्रार्थना के समय में सुने थे, जो हम करते हैं मम्मी पापा को मालूम नहीं है, पति को मालूम नहीं है, पत्नी को मालूम नहीं है, बच्चा लोग को मालूम नहीं है। ஆனா நம்ம என்ன செய்யறது? துன்மார்க்கத்தை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறோம்। हम लोग क्या करते हैं, वो दुष्टता के बातों को इकट्ठा करते आ रहे हैं। நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம டாப் அப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம்। हम लोग क्या करते आ रहे हैं, मोबाइल को टॉप अप करने के समान हम लोग अपने जीवन में उसको टॉप अप करते आ रहे हैं। அதாவது பாவத்தை டாப் அப் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்। पाप को बढ़ाते जा रहे हैं। வேதம் சொல்லுது, பாவத்தோட பாவத்தை கூட்டும்படி। वचन में ऐसा बातों को लिखा है, पाप को ऊपर पाप को इकट्ठा करने के लिए அப்படியே பாவத்தை டாப் அப் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்। ऐसे ही हम लोग पाप को बढ़ाते जा रहे हैं। அந்த மாதிரி இவன் என்ன செய்றான்? தன்னுடைய வீட்டில இருந்து பாவத்தை டாப் அப் பண்றான்। ऐसे ही इस लड़का भी अपने घर में अपने पापा के साथ रहते हुए पाप को बढ़ाते गया। அது இந்த இடத்துல அவன் நினைச்ச பாவங்களை செய்ய முடியல। अभी वहां रहते हुए, साथ में घर का अंदर रहते हुए वो चाहत करने वाला काम को प्रकट नहीं कर पा रहा है, அவன் வந்து அந்த தாய் தகப்பனுடைய ஆதீனத்துல இருக்கிறான்। क्योंकि वो मम्मी पापा का अधीनता में थे। இப்போ அவன் என்ன செய்றான்? अभी उन्होंने क्या कर रहा है, அவன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொண்டு सब चीज को इकट्ठा करके தூர தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் दूर देश में चला गया। பக்கத்திலே வேண்டாம், साथ में नहीं है, पापा का साथ एकदम नहीं, பக்கத்திலே வேண்டாம்। एकदम इस पापा का साथ रहूंगा ही नहीं। டீம்ல கொஞ்சம் பேர் சொல்லுவாங்க, अनेक लोग हम लोग टीम में भी बोलते हैं, சுரேஷ்னு பேர் உள்ளவங்க புருஷனை கெட்டவே கூடாது, सुरेश नाम के लड़का से शादी भी नहीं करना है, தூரத்துல போயிடணும்। एकदम उनसे दूर में रहेंगे। எவ்வளவு தூரம் போயிட முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் போயிடணும்। कितना दूर मैं चाहता हूँ उतना दूर मैं जाऊंगा, ஏன்னா எனக்கு இண்டிபெண்டன்சி வேணும்। क्योंकि मेरा स्वतंत्रता आवश्यकता है। ரோட்ல போனா அவன் தான் मुन्नाல போயிடுறான், रोड में आने से वही आ रहा है, और गोलगप्पा கடையில போனா அவன் தான் தெரியுறான், गोलगप्पा खाने के जगह पे जाने से वहाँ भी आ जाता है, கொஞ்சம் வாலிப வயசு ஏதாவது பையன்கிட்ட சேட் அடிக்கலாம்னா அவன் தான் வந்துடுறான், जवानी का उम्र में किसी से चैट करूं करके सोचने से वही आ रहा है, யார்கிட்டயாவது பேசலாம்னு சொன்னா அவன் முன்னால ஓடி போயிடுறான்। किसी से बातचीत करने के समय वो पार होके चले जा रहा है। பெரிய தொந்தரவு, इसके चलते बहुत परेशानी है, இவன் கிட்ட இருந்து தூரத்துல போயிடணும்। इससे बहुत दूर जाना है। இந்த பையன் இப்படிதான் செய்யறான், एक लड़का भी यही सोचा, தூரத்துல போயிடும்। एकदम दूर देश में चला गया, அப்பாக்கு கிட்ட இருக்க கூடாது, पापा के साथ एकदम नहीं रहना। இங்கேயும் பிரச்சனை தான், அப்பா கிட்ட இருக்கணும்।
यहाँ भी परेशानी है, पापा का साथ रहना है। அவங்க रहना नहीं है, रहना नहीं है, அவரு தூரமா போயிடணும். एकदम दूर देश में चले जाना। இங்க என்ன நடக்குது? அவன் தூரமா போயிட்டான். चला गया दूर में, அப்பா வீட்டை விட்டு தூரமா போயிட்டான். पापा को छोड़ के दूर में चला गया, கொஞ்சம் கூட அவருடைய கண்ட்ரோல் மேல இருக்க கூடாது. क्योंकि पापा का आधीनता थोड़ा भी मेरे जीवन में नहीं रहना, Because I want to enjoy my independency. क्योंकि मैं तो मेरे स्वतंत्रता को एंजॉय करना चाहता हूँ। அவனுடைய சுதந்திரம் என்ன எங்க கொண்டு போகுது? उसका स्वतंत्रता, वो चाहत करने वाला बात है, उसको कहाँ लेके அவன் गया? சுதந்திரம் நினைச்சது என்ன? वो स्वतंत्रता करके सोचने वाला बात क्या है? வீட்டுக்குள்ள இருந்தா घर के अंदर रहने से படம் பார்க்க முடியாது. हम तो फिल्म नहीं देख सकते हैं। வீட்டுக்குள்ள இருந்தா घर के अंदर रहने से டைமுக்கு தூங்கணும். टाइम में सोना पड़ेगा, ரொம்ப மொபைல்ல விளையாட முடியாது. मोबाइल में हम लोग खेल नहीं सकते हैं। வீட்டுக்குள்ள இருந்தா சேட் பண்ண முடியாது. அதாவது வேற யார்கிட்ட பேச முடியாது. घर के अंदर रहने के समय हम लोग मोबाइल रखे चैट नहीं कर सकते हैं, वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं। தூர போயிட்டோம்னா एकदम दूर जाने से தனியா இருந்தோம்னா अकेले रहने के समय ஒண்ணுலயோ தனியா இருக்கணும், एक को अकेले रहना இல்லன்னா அப்படிப்பட்ட ஜனங்களோட இருக்கணும். नहीं है तो ऐसा लोगों के साथ रहना। கவனமா கவனி. ध्यान से सुनिए, நம்ம விரும்புறது என்ன? हम लोग क्या चाहत करते हैं? தனியா இருக்கணும், एक तो अकेले रहना, இல்லன்னா அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள்ல இருக்கணும். नहीं तो मेरा कैरेक्टर के समान रहने वाला ऐसा लोगों के साथ रहना। மனோஜ்க்கு சொப்பனத்துல அவங்க அம்மா டெய்லி எப்படி வருவாங்களா இருக்கு தெரியுமா? मनोज के स्वप्न में उसका माँ कैसा आती होगी मालूम है? ரெண்டு கொம்பு, दो सिंह, ஒரு வாலு, एक तो मुछ, ஒரு பாலா, एक என்னது சொல்லுவோம், இந்த ஈட்டி, एक तो बाला लेके அப்படிதான் வருவாங்க. ऐसे आती होगी। ஏன் சொல்லும் இந்த இந்த கிழவினால இந்த பொம்பளைனால எனக்கு சுதந்திரமே இல்ல. तो क्योंकि वो ना बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, इसलिए इसके चलते हम तो कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। நான் செய்ய வயலட்டா முந்தி இருந்துச்சு. वो पहले था ऐसा। சோ எனக்கு அருமையானவர்களே, நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸிய விரும்புறதுனாலதான் நம்முடைய தகப்பனை நம்ம நேசிக்க முடியல. हम लोग इस स्वतंत्रता को चाहत करने के चलते पापा को प्यार नहीं कर पा रहे हैं, அதனாலதான் பாப்பா தகப்பனை எதிர்த்து நிற்கிறோம். इसलिए पापा का विरोध में खड़े होते हैं। இந்த இவன் என்ன செய்யறான்? எதிர்த்து நின்னுட்டான். इन्होंने क्या हो गया? पापा का विरोध खड़े हो गया। சொந்த பிரிச்சுட்டா. अभी मेरे दादा लोग को अलग करके दे, I don't want to be with you. मैं तो तेरे साथ रहना नहीं चाहता, I want my own independency. मैं तो मेरे स्वतंत्रता को चाहता நான் हूँ। தலைக்கு மேல வாழ்ந்துட்டேன். हम तो तुमसे बड़ा हो गया, இனி என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணாத. अभी मुझे कंट्रोल में नहीं रखना है। கண்ட்ரோல் பண்ணாத. சோ நீ கண்ட்ரோல் பண்ணாத நீ. इसलिए अभी तेरा अधीनता में मैं नहीं रहूंगा, मुझे कंट्रोल नहीं करना। விட்டாச்சு. छोड़ दी। அவன் என்ன செய்யறான்? उन्होंने क्या किया? சும்மா இருக்கத அவன் சின்ன வயசுல இருந்தே வளர்த்துட்டு வந்தான் உள்ள. उन्होंने क्या किया? कुकर को अपने जीवन में छोटा उम्र से बढ़ाते बढ़ाते आया। இப்போ அவன் என்ன செய்யறான்னா அந்த ஆசை வெளிய போன உடனே முழுவதுமா அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறான். उस कुकर के बाद उसके अंदर बढ़ते बढ़ते रहने के चलते पापा से दूर होने से वो क्या कर रहा? उसको प्रकट करना शुरू किया। அவனுடைய எல்லா பயாலஜிக்கல் ட்ரைவ்ஸையும் பூரா பண்றதுக்காக ஆசைப்படுறான். सारे शारीरिक अभिलाषा को पापा से दूर होते हुए करने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया। 30வது வசனத்தை படிங்க. 30वां वचन को पढ़ के देंगे। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, வேசிகளிடத்தில் தன்னுடைய ஆஸ்தியை அழித்து போட்டான். वहाँ उसका भाई ने उसके बारे में गवाही दे रहा है, वेश्या के पास जाके सारे संपत्ति को उड़ा दिया। ஏன் ஒரே நாள்ல இவன் பாவியாகி போனானா? क्या एक दिन में ही पापी बना? இல்ல, இவனுக்குள்ள அந்த பாவ இச்சைகள் வளர்த்து கொண்டே இருந்தான். एक दिन में उन्होंने पापी नहीं बना, छोटा उम्र से उसके अंदर में वो कुकर्म से बढ़ते आया। சாத்தானானவன் அவருடைய தகப்பனை விட்டு பிரிப்பதற்காக அவருடைய ஆசை இச்சைகளை உபயோகப்படுத்தி விட்டான். वो क्या है? पापा से अलग करने के लिए शैतान ने आशा अभिलाषाओं को उसके जीवन में इस्तेमाल कर दिया। எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே, मेरे प्रिय परमेश्वर का लोग, இனி நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் சாத்தான் பலமாக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறான். आज हमारे जीवन में भी शैतान एकदम तेज से काम कर रहा है। அதாவது விசுவாசி இல்லாத ஜனங்களிடத்தில் அவன் அவ்வளவு கிரியை செய்ய மாட்டான். अविश्वासी लोगों के बीच में शैतान का काम प्रकट नहीं होता है। விசுவாசத்துக்குள்ளே வரும்பொழுது கொஞ்சமாக செயல்பட ஆரம்பிப்பான். विश्वास में थोड़ा सा आने के समय थोड़ा सा हम लोग का ऊपर प्रयास करेगा। விசுவாசத்திலே வளரும் போது இன்னும் செயல்பட ஆரம்பிப்பான். विश्वास में और थोड़ा बढ़ने के
பலமா நம்மள விழ வைக்க முயற்சி பண்ணுவான். हम सेवक बनने के समय हम लोग को गिराने के लिए बहुत प्रयास करता है। கருமையான தேவஜனமே, we should be very careful. मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, हम लोग सावधान होने की आवश्यकता है। ஏன்னா இந்த நேரத்துல நம்ம பெற்றோர்கள் சொல்றதெல்லாம் பிடிக்காது. अभी ऐसा एक परिस्थिति में हम लोग आने के समय हम लोग का माता पिता बोलने वाला बातें हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்கிறா. मेरा एक बहन है, ஒரு சொந்தக்கார ஒரு தங்கச்சி. मेरे रिश्तेदार में एक बहन। அவ வந்து ஒரு நேரத்துல ஒரு பையனை திருமணம் செய்யணும்னு விரும்பினாள். उन्होंने जवानी के समय में एक लड़का से शादी करना चाहती அப்ப थी। எல்லாரும் விரோதிச்சோம். सब लोग उसका विरोध किए, அடிச்சு பார்த்தாங்க, அவளை उसको मार के देखे, என்னெல்லாமோ செய்து பார்த்தாங்க. बहुत प्रयास किए। அவ வந்து அவளை கட்டிக்கிட்டா. वो क्या की उसी के साथ शादी की। ஆனா கடைசியில கட்டி கொடுக்க நிர்பந்தத்துல கட்டி கொடுத்தாச்சு. लास्ट में क्या हुआ, इन लोग तो जबरदस्ती उसको क्या करना पड़ा, कर दिए। ஆனா வயசாக उम्र होते होते அவன் பயங்கர குடிகாரன். वो तो बहुत पिया करता, அவனை அடிக்கிறான், उसको मार रहा था। அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நாள் சந்தோஷம் கிடையாது. इसके जीवन में कभी उन्होंने आनंद महसूस नहीं की। இப்போ வந்து நாங்கெல்லாம் சொன்னது சரின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான். अभी उन्होंने बोलती है, आप लोग बोले वो सही है। அந்த நேரத்துல, அந்த வாலிப நேரத்துல அவனுக்கு அது சுதந்திரமா தெரிஞ்சிச்சு. उसका जवानी की उम्र में वो स्वतंत्रता के रूप में दिखा। என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய சுதந்திரம், मेरा जीवन मेरे स्वतंत्रता, என்னுடைய காரியங்களை செய்வது என்னுடைய சுதந்திரம். मेरा जीवन का कामों को करना मेरा स्वतंत्रता। ஆனா என்ன நடந்துச்சு? लेकिन क्या हुआ, இன்னைக்கு என்னைக்குமே கண்ணீர். आज ही रोज रोते रहती है। அவளுடைய டிசிஷனை பத்தி அழுதுகிட்டே இருக்கிறார். उन्होंने अपने निर्णय को सोचते हुए रोते रह रही है। அதே வேலை தான் இவனுக்கு நடந்துச்சு. अब वही चीज इसके जीवन में भी हुआ। இவன் என்ன செய்யறான்? उन्होंने क्या किया, பெரட்டு போயிட்டான் அப்பாட்டு இருந்து. उन्होंने क्या किया, सब धन दौलत को देके, संपत्ति को लेके दूर देश में चला गया। அவன் வந்து போனது மாத்திரமல்ல, केवल वो गया नहीं, அவன் எதெல்லாம் சுதந்திரம் நினைச்சானோ அதெல்லாம் செய்தான். उन्होंने क्या क्या चीजें जीवन में स्वतंत्रता करके सोचा, उस सब चीज को किया। ஆனா அவன் நினைத்த சுதந்திரம் அழிவுக்குள்ள கொண்டு வரும்னு சொல்லி அவனுக்கு தெரியாது. लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था, वो स्वागत करने वाला उसके जीवन की स्वतंत्रता उसी के जीवन में नष्ट को लेके आता करके कभी नहीं सोचा। எனக்கு அருமையான கவனமா கவனிங்க. मेरा प्रिय ध्यान से सुनिएगा, அவன் நினைத்த அந்த சுதந்திரம் அவனை அழிவுக்குள்ள கொண்டு வரும்ன்றது அவனுக்கு தெரியாது. वो अपने जीवन में सोच के करने वाला, जागत करने वाला स्वतंत्रता खुद का जीवन को नष्ट में लेके जा रहा करके उन्होंने कभी नहीं सोचा। நான் விரும்புகிறத செய்தா என்ன? मैं मेरे इच्छा के अनुसार चलने से क्या होगा, அவன் செய்தான். उन्होंने किया। இப்ப என்ன நடந்துச்சு? अभी यहाँ क्या हुआ, குறைவுபட தொடங்கிச்சு. अभी उसके जीवन में कमी आना शुरू हो गया। இப்ப கேளுங்க, எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன். एक एग्जाम्पल के लिए, मैं उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। ஒருவேளை வச்சுக்கிடுவோம், எங்ககிட்ட 1 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு. अभी मेरा पास 1 लाख रुपया है। அப்ப இந்த 1 லட்சம் ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா நாங்க என்ன செய்வோம்? उस 1 लाख रुपया रहने से हम लोग क्या करेंगे, அதை நம்ம பிளான் பண்ணுவோம். उसको हम लोग प्लान करते हैं। அடுத்த வருடத்துக்கு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஃபீஸ் கட்டணும், अभी तो इस बच्चा लोग के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए क्या क्या, इतना कहाँ फीस देना है, இவ்வளவு வச்சுக்கிடணும், इतना रखना है। அப்புறம் இது இப்படி வந்து நிறைய பிளான்ஸ் வைப்போம். ऐसा अनेक योजना को हम लोग करते हैं। இப்ப டேடி பாக்குறான், अभी डैनी देख रहा है, அதுல வந்து பேங்க் புக்க பார்க்கும்போது அதுல 1 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு. अभी उन्होंने डैनी देख रहा रखिएगा, उस बैंक बुक में हम लोग का अकाउंट बैलेंस 1 लाख रुपया है। இப்ப இவன் என்ன செய்வான்? अभी उन्होंने क्या बोलेगा, எனக்கு ஒரு ஆப்பிள் போன் வாங்கிட்டாங்க. पापा मेरे लिए एक एप्पल फोन करके दीजिए। ஓ, இப்ப எனக்கு ஆப்பிள் போன் வேணும், अभी तो चाहिए, இப்ப எனக்கு வேணும். अभी चाहिए। அப்ப கொடுக்கலன்னா சண்டை போடுவான். वो नहीं देने से झगड़ा करेगा। வச்சுக்கோங்க, எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். नहीं, ऐसे ही मैं एग्जाम उदाहरण के लिए मैं बोल रहा அவன் செய்ய மாட்டான். हूँ, वो कभी ऐसा नहीं बोलता है। எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ஏன் சொன்னா அந்த 1 லட்சம் ரூபாய் இருக்குது. क्योंकि वो जानता है उसके पापा का पास 1 लाख रुपया है। எனக்கு தந்தா என்ன செய்யும்? हमको देने से क्या होगा, சரி, ஒரு 50,000 ரூபாய் எனக்கு செலவழிச்சா என்ன செய்யும்? 50,000 रुपया मेरे लिए खर्च करने से क्या होगा, அவனுக்கு தெரியாது. उसको मालूम नहीं है। அந்த அப்பா அந்த சொத்தை பிரிக்காம இருக்கிறது ஏன்னு அவனுக்கு தெரியாது. उसको मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्यों पापा ने उस संपत्ति को अलग नहीं कर रहे करके उसका ज्ञान नहीं। செலவு பண்ணாதேன்னு சொல்றது ஏன்னு சொல்லி தெரியாது. तुम इतना खर्च मत करो करके बोल के पापा बोल रहे क्यों करके उसको ज्ञान नहीं है। இவ்வளவு நீ மொபைல் யூஸ் பண்ணாதேன்னு சொல்றது ஏன்னு தெரியாது. इतना मोबाइल तुम यूज मत करो करके बोलने क्यों पापा बोल रहे उसको ज्ञान नहीं है। ஏன்னா இத பண்ணினா இது வரும்ன்றது அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் தெரியும். वो पापा मम्मी को मालूम है इसको ऐसा बच्चा करने से क्या रिजल्ट होगा, पापा को मालूम है। அந்த அப்பா
तो पापा को पहले ही मालूम रहता है, எல்லாம் தீர்த்துக்கிட்டு தான் அவன் திரும்பி வருவான். तो पापा को मालूम था ये सब खर्च करके आएगा. எனக்கு என் வாழ்க்கையில ஒரு ஆசை உண்டு. मेरे जीवन में एक इच्छा है, நல்லா ஒரு வருஷத்துக்குள்ள செலவுக்குள்ள பணத்தை டேனி கையில கொடுத்து நீ எங்கேயாவது வேலை செய்ய ஏதாவது செய்து நீ பிழைச்சிக்கன்னு சொல்லு. मेरे अंदर एक इच्छा है, डैडी के हाथ में कुछ पैसा देना है, उसको तो थोड़ा सा सीखने के लिए भेजना है, तुम कैसा भी हो तुम अपने कमाओ जियो. 6 மாசம் கழிச்சு சொல்லுவான், 6 महीना के बाद बोलेगा அப்பா பைசா அனுப்பு. पापा पैसा भेजिए. ஆனா ஜெப்னியா இருந்தா यदि वहाँ जेफनी रहता அவன் என்ன சொன்னா திருட்டு பயலாக அவன். वो तो एकदम चोर है. அவன் என்ன செய்வான்னு சொன்னா அந்த 1 லட்சத்தை போட்டுட்டு वो 1 लाख रुपया को रखे அதுல வர்ற இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எடுத்து வெறும் கஞ்சி மட்டும் குடிச்சிட்டு வந்துரும். वो क्या करेगा, उसी में आने वाला इंटरेस्ट को लेकर केवल मार भात खा के बैठ जाएगा. அவன் மிச்சத்தை அப்படியே வச்சிருப்பான். वो ऐसे रखेगा, ஆனா இவன் அப்படி இல்ல. लेकिन ये ऐसा नहीं है. 6 மாசத்துல அந்த 1 வருஷத்துக்குள்ள பைசா முடிச்சிட்டு வந்து நிப்பான். 6 महीना के अंदर 1 साल का पैसा को खत्म कर देगा. ஏன் சொன்னா அவனுக்கு என்னன்னா இதுதான் சுதந்திரம். तो वो सोचेगा पापा है ना ये मेरा स्वतंत्रता. இந்த இடத்துல என்னன்னா यहाँ देखिएगा அப்படிப்பட்டது இல்ல. वो ऐसा नहीं है. இவன் பாவத்தை நோக்கி போறான். ये क्या किया, कुकर्म को ओर जा रहा है. நான் எந்த வீட்டுக்கு போடுமோ போவேன். मैं किसी घर में जाता हूँ वो वहाँ जाऊंगा, என்ன போகாதேன்னு சொல்லக்கூடாது. हमको कोई मना नहीं करना है. எந்த பொண்ணுகிட்ட பேசணுமோ பேசுவேன். किसी लड़की से बातचीत करूंगा, लड़का से बातचीत करूंगा, कोई मना नहीं करना என்ன है. போகாதேன்னு சொல்லக்கூடாது. मुझे मना नहीं करना है. நான் யார்கிட்ட போன்ல chat பண்றேன்னு சொல்லி நீ பார்க்க கூடாது. मैं किससे चैट कर रहा हूँ तुम देखना नहीं है. அது என்னுடைய वो சுதந்திரம். तो मेरा स्वतंत्रता है. நான் வாலிப பிள்ளை. मैं तो जवान हूँ. எதுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம்? क्यों हम लोग कंट्रोल करते हैं? நீ உனக்கு தெரியாது இதனுடைய கான்சிக்வென்ஸ் என்ன. इसका अंत क्या है मालूम नहीं है. வாலிப சகோதரனே சகோதரியே, இன்னைக்கு நான் சொல்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உனக்கு தான். உனக்கு தெரியாது ஏன் இது நாங்க கண்ட்ரோல் பண்றோம்னு சொல்லி. आज मुझे सुनने वाले हर एक जवान लोग इस बातों को याद रखिएगा, क्यों चिताते हैं आज आपका मालूम नहीं, आपका ज्ञान नहीं है. இவன் என்ன செய்யறா? इन्होंने क्या किया, பெரிய வீட்டு பையன் बड़ा घर का लड़का குறைவுபட தொடங்கினோம்னா பண்ணி மேய்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான். अभी जीवन में कमी होना शुरू होने से ही सूअर चराना शुरू हो गया. அப்பாட்ட இருந்து நீ போனீங்கன்னா பண்ணி மேய்க்கிறதும் பண்ணிக்கிறது சாப்பிடுறதும் நீ ஆகும். यदि पापा से अलग होके स्वतंत्रता चाहत करके दूर जाएगा तो तेरा जीवन भी यही है, सूअर का पीछे ही நீ जाएगा. நினைக்கிற சுதந்திரம் உன்னை பண்ணிக்க பின்னால தான் கொண்டு வரும். तुम चाहत करने वाला स्वतंत्रता तुमको सूअर का पीछे ही ले जाने जा रहा है. சகோதரியே, நீ கெட்ட விரும்புகிற அந்த பையன் பண்ணியா இருக்கலாம். हो सकता है आप शादी करने के लिए सोचने वाला वो लड़का सूअर के रूप में हो. கவனமா கவனிச்சுக்க. ध्यान से सुनिएगा. அப்பா அம்மா செலக்ட் பண்ணும்போது பண்ணியை செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. माता पिता सेलेक्ट करने के समय सूअर को सेलेक्ट नहीं அவங்க करेंगे, ராஜகுமாரனை தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. वो राजकुमार लोगों को सेलेक्ट करते हैं. உனக்கு வயசு பத்தாது, நீ ஒருவேளை பண்ணியை செலக்ட் பண்ணிடலாம். हो सकता आपको तो उम्र नहीं हुआ सेलेक्ट करने के लिए, आप हो सकता है सूअर को सेलेक्ट करके நாளைக்கு रखेंगे. சூழ்நிலை பண்ணியா மாறும் சொல்லி உனக்கு தெரியாது. कल वो सूअर का समान उस परिस्थिति बदलेगा करके आज तुमको ज्ञान नहीं है, அதனாலதான் உன்னை எச்சரிக்கிறோம். इसलिए तुमको चिताते हैं. இன்னும் என்ன நடக்குது? यहाँ क्या हो रहा है, பண்ணி சாப்பிட்ட சாப்பாடு கூட உனக்கு கிடைக்கல. उन्होंने छावट कर रहा सूअर का खाना मैं खाऊं, लेकिन वो भी नहीं मिला. அதுல என்ன எழுதி இருக்கு? वहाँ क्या लिखा है, அவன் குறைவுபட தொடங்கி. उस वहाँ लिखा है 14 वचन के लास्ट पार्ट में लिखा है वो कमी होना शुरू हुआ. அவன் குறைவுபட தொடங்கினான். उसका जीवन में कमियां शुरू होने लगा. இப்ப அவன் பண்ணி மேய்க்கிறவங்க கிட்ட போய் ஒட்டிக்கிட்டான். अभी इन्होंने क्या किया है, देशवासी के पास जा रहा है. அங்க இருந்து இங்க வந்துட்டான். अभी ऊपर से एकदम कचरा में गिर गया. இப்ப தெரியுது. अभी समझ में आ रहा है. 17வது வசனம் 17 वचन இல்ல 16ல சொல்லுது, ஒருவனும் அவன் விருப்பத்தை இப்ப கொடுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்ல. अभी 16 वचन में यही बातों को हम लोग देख पा रहे हैं. वो चाहत किया, अभी पहले चाहत किया सब कुछ मिलता था, अभी चाहत करने वाला बातें को देने के लिए कोई नहीं है. பண்ணி தின்ற தவிட கூட கொடுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்ல. अभी कम से कम सूअर खाने वाला खाना को खाऊं करके सोचने से भी नहीं मिल रहा है. டேடி வீட்ல இருந்தான்னா डैडी घर में रहने से அவனுக்கு ஆம்லெட் போட்டு சாப்பிடணும். ஆம்லெட் போட்டு சாப்பிடும். आमलेट खाने की इच्छा रहता है, खाते रहेगा. வேற ஏதாவது செய்யணும்னா செய்து சாப்பிடுவான். और कुछ भी चाहिए तो खाएगा, बना के खाता है. எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நாங்க ஒரு நாள் பிரியாணி செய்து தருவேன்னு சொல்லி. अभी उन्होंने बोला है एक दिन बिरयानी बनाऊंगा. ஏதோ அவனுக்கு விரும்புறதை செய்யணும்னு விரும்புவான். घर के अंदर रहा, अपने इच्छा के अनुसार वो चाहत करेगा. இந்த பையனும் அப்படிதான் இருந்தான். ये भी ऐसे ही था. ஆனா இப்ப என்ன நடக்குது? अभी यहाँ क्या हो रहा है, அவன் விரும்புகிற
பண்ணி தின்றது கூட அவனுக்கு விருப்பத்துக்கு நேரம் கிடையாது. अभी पापा से दूर होने के बाद सुअर खा रहा है लेकिन उसको वो भी नहीं मिल रहा है। என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? अभी क्या हो रहा है? என்ன நடந்துச்சு? क्या हो रहा है? அழிவுக்கு நேரம் போயிட்டான். एकदम नष्ट को ओर चला गया, குறைவுக்கு ஓர போயிட்டான். एकदम कमी आ गया जीवन இப்ப में। என்ன நடக்குது? अभी हो रहा है, அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த போது अभी उन्होंने अपने आप में आ रहा है, अपने आप में आया, अभी आया अपने आप में, और when he come into his sense, अभी अपने आप में आया। इंग्लिश அழகா எழுதிருக்கு, when he come into his sense, उसके बुद्धि में अभी आ रहा है अपने आप में। அப்ப இப்ப வரை யாருக்கு புத்தியில இருந்தா? तब तक उस वर्ग के पीछे जाने समय तक किसका बुद्धि में चला? அழகா எழுதிருக்கு, when he come into his sense. अभी बहुत अच्छा से लिखा है, अभी उन्होंने अपने आप में आ रहा है। அப்போ யாருக்கு பிடியில இருந்தாவே? तब तो अभी तक किसका कब्जा में था? மனோஜ் சொன்னா முன்னமே அப்படி இருந்துச்சு. मनोज बोल रहा था पहले में ऐसा था, அவனுக்கு எப்படிதான் இருந்துச்சு முன்னமே? उसको ऐसे ही था। when he come into his sense, अभी उन्होंने अपने आप में आया, அவன் தன் புத்தியில வந்தான். उन्होंने अपने आप में आया, புத்தி தெளிந்து விட்டது. अभी तो उसका बुद्धि ठीक हो गया, இப்பதான் உண்மை எதுன்னு புரியாது. अभी सच्चाई प्रकट हो रहा है, ஹலோ, இப்பதான் உண்மை எதுன்னு புரிய ஆரம்பிக்கும். अभी सच्चाई प्रकट हो रहा है। நமக்கு புத்தி தெரியலன்னா உண்மை தெரியாது. कब तक बुद्धि ठीक नहीं होगा, सच्चाई क्या है करके हम लोग समझ नहीं पाएंगे। இவனை கெட்டி தரலன்னா நான் செத்து போவேன். इस लड़का से शादी नहीं करेगा तो हम मर जाएंगे। என்ன மாதிரிப்பட்ட பேரண்ட்ஸா இருந்தா சொல்லுவாங்க செத்து போ. मेरा समान वाला रहता तो तुम मर जाओ, ஏன் சொன்னா நான் எங்க அம்மாவுடைய மகன். क्योंकि मैं मेरा मामा का बेटा हूँ। எங்க வீட்ல ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. मेरे घर में ऐसा घटना हुआ। எங்க மூணாவது அண்ணனுடைய வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவம். मेरा तीसरा वाला भैया का जीवन में हुआ घटना। ஒரு நாள் இப்படியாக நடந்துச்சு. அவங்க சொன்னாங்க இப்ப எனக்கு செருப்பு வாங்க பைசா வேணும். उन्होंने मांग रहा था अभी मेरे लिए चप्पल चाहिए। நாங்க எஸ்டேட்ல இருக்கிறோம். हम लोग स्टेट में रहते थे। அதாவது அங்க இருந்து ஒரே ஒரு பஸ் காலையில போகும், ராத்திரி வரும் ஊட்டிக்கு போறது. क्या है, ऊटी जाने आने के लिए एक बस नीचे जाके वही बस ऊपर आता था एक ही समय में। ஆனா இது வந்து ராத்திரி கேக்குறாரு. इन्होंने सुबह रात का समय में पैसा मांग रहा था। அப்போ அம்மா சொல்றாங்க இது நீ காலையில தான் உனக்கு பஸ் காலேஜுக்கு காலையில தான் போணும், நான் காலையில தரேன். सुबह का समय में तेरा बस सुबह मैं दूंगा। எனக்கு இப்ப வேணும். अभी चाहिए, தர முடியாது. मैं नहीं दूंगी। இப்ப தரலன்னு சொன்னா நான் விஷம் குடிச்சிடுவேன். अभी नहीं देगी तो मैं अभी नहीं देगी तो मैं जहर पी लूंगा। அம்மா ஒரு அடி கொடுத்து குடியிலன்னு சொன்னா. एक मार मार के पियो। அம்மா முந்தி எங்க அம்மா முந்தி ரொம்ப குண்டா இருப்பாங்க. अब मेरा मम्मी तो एकदम आटा कटा थी, एकदम ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. बहुत स्ट्रांग थी। ஒரு அடி கொடுத்து குடியில. एक मार मार के बोली पी लो। அதுல குடிச்சிடுவேன். मैं तो पी लूंगा। குடியில. पी लो, குடியில இப்ப குடியில நீ. अभी पी लो। ஒரு அடி. और एक मार, குடிச்சு காட்டல. अभी पी के दिखाओ। அப்ப அடி வாங்கிக்கிட்டு கோவத்துல இவங்க என்ன செய்தாங்க, டக்கு டக்குன்னு ஏறி மேல இருந்து ஒரு விஷத்தை எடுத்து குடிச்சிட்டாங்க. अभी वो क्या किया, क्रोध में आके मार खाते खाते पूरा पी लिया। அம்மா கவலையே படல. मेरा मम्मी तो दुख नहीं हुई। அடுத்த ஒரு அடி. वो उसके बाद और एक मार। அந்த காலத்துல அந்த உப்பு வந்து கல் உப்பு தான் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். उस समय में एक पत्थर के टाइप में एक नमक मिलता था, उसी को हम लोग इस्तेमाल करते। அதுல பாட்டில்ல போட்டு தண்ணி ஊத்தி வச்சிருப்போம். उसको बाटली में डाल के हम लोग पानी डाल के रखते थे। இதெல்லாம் நாங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கிற நேரத்துல நடந்தது. ये छोटा उम्र में हुआ घटना। அண்ணன் எல்லாம் சின்ன பையனா இருக்கிற நேரத்துல छोटा उम्र था, அவங்க காலேஜ்ல படிச்சிட்டு இருந்தாங்க. कॉलेज में पढ़ रहा था। அப்ப எங்க அம்மா என்ன செய்தாங்கன்னா ஒரு அடி குடுத்துட்டு அந்த உப்பு பாட்டில் எடுத்து காலை கீழ மிதிச்சு போட்டு அப்படியே போய் குடிக்க வச்சிட்டாங்க. मेरा मम्मी ने क्या की, पूरा एकदम गोल के रख के वो नमक पानी को उसको पीने के लिए रख दिया। நல்ல அம்மா பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. मेरा मम्मी बहुत स्ट्रांग थी। அவ பிடிச்சு வச்சு இவங்க வந்து பயங்கர பலவான். ये भी तो बहुत स्ट्रांग है, அவங்க வெயிட் லிஃப்டிங் பண்றது எல்லாம் பயங்கரமா பண்றாங்க. व्यक्ति। ஆனா அவங்களோட அம்மா ஸ்ட்ராங் தூக்கி போட்டு குடிக்க வச்சு ஃபுல்லா வாந்தி எடுக்க வச்சு அது மாத்திரம் நடக்கல. वो क्या की थी, मेरे मम्मी उसको पकड़ के पैर के नीचे रख के पूरा एकदम पिला के। அப்ப எங்க அப்பா வந்தாங்க ஆபீஸ்ல இருந்து. उस समय में मेरा पापा भी घर के अंदर पहुंच चुके थे। அப்பா வந்த உடனே அம்மா சொன்னாங்க இவன் இப்படி பண்ணுனா நான் இப்படி பண்ணேன். मेरे पापा से मम्मी ने बोली तो ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा की थी। ஓ அப்படியா? ऐसा है। அப்பா உடனே போன் அந்த காலத்துல இப்படி சுத்துற போன் உண்டு. उस समय में तो हम लोग जानते हैं ऐसा रिंग करने वाला फोन। அப்ப உடனே போனுக்கு போனாங்க. उस समय में पापा ने जाके फोन किए। அப்பா ஒரு பெரிய ஆபீசர்னால டாக்டரை விட எங்க அப்பாவை அப்பான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. ரொம்ப மகாமாரி இருப்பாங்க லேடி டாக்டர். मेरा पापा तो ऑफिसर के रूप में रहने के चलते डॉक्टर की तो पापा पापा करके बोलती थी। அவங்க ரொம்ப அன்பா இருப்பாங்க. बहुत रिस्पेक्ट और प्यार के साथ थी। அப்போ என்ன செய்தேன்னா அந்த டாக்டருக்கு போன் பண்ணாங்க. तुरंत पापा ने डॉक्टर को फोन किए। ஏய் இவன் மனோ இப்படி பண்ணிட்டா நீ உடனே நீ இது கார் எடுத்துட்டு வா. मेरा
मनो बेटा ऐसा कर दिया इसलिए तुम कार लेके आओ। உடனே இவங்க என்ன செய்தாங்க, கார் எடுத்து கொண்டு வந்தாங்க. उन्होंने कार लेके आई। வந்த உடனே சொன்னாங்க, இவன் வந்து இப்படி பண்ணிட்டான், நீ ஒண்ணு செய், டியூப் போட்டு இவனுக்கு வயிறை ஃபுல்லா க்ளீன் பண்ணிடு. पापा ने कहा इन्होंने ऐसा किया इसलिए इसका मुंह के अंदर से ट्यूब डाल के इसका पेट को साफ करना है। ஏற்கனவே பாந்து எடுத்து எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சு. ऑलरेडी तो सब क्लियर, मेरा मम्मी ने सबको साफ कर दी। அப்ப இவங்க சொல்றாங்க, விட்டுருவோம்ப்பா, ஒண்ணு வேண்டாம், அதெல்லாம் வேண்டாம். डॉक्टर ने रिक्वेस्ट कर रही है, हम लोग छोड़ देंगे, इसको नहीं करना है। ஏய், நான் சொல்றேன் நீ செய். तो पापा ने बोल दिया मैं बोल रहा हूं तुम करो। அங்க கொண்டு போய் வயத்துக்குள்ள போட்டு எல்லாத்தையும் கழுவி எடுத்துட்டாங்க. अभी जैसे हॉस्पिटल में रख के उसके अंदर में ट्यूब डाल के कितना परेशानी करना है करके उसको साफ कर दिए। அப்புறம் கேக்குறாங்க, उसके बाद उनसे पूछा गया था இனி குடிப்பியா? आगे पिएगा? गलती से भी नहीं करेंगे. சோ அந்த அப்பா का महें இல்லையா? उस पापा का बेटा मैं हूँ। சோ நானா இருந்தா அப்படி சொல்லிருப்பேன். मैं तो ऐसा बोलूंगा। ஆனா இங்க என்ன நடக்குது? लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? இவன் என்ன செய்றான்? புத்தி வந்துருச்சான். अभी इसके अंदर बुद्धि आए। அவன் என்ன செய்றான்? சேஞ்ச் தி மைண்ட். बुद्धि आने से मन परिवर्तित हो रहा है। அவன் என்ன சொல்றான்? நான் இப்ப எங்க அப்பாட்ட போவேன். उन्होंने अपने आप में आने के बाद मन परिवर्तन होके तब पापा का याद आ रहा। எனக்கு நான் செய்தது அவ்வளவு தவறு. मेरे जीवन में अभी तक किया हुआ बातें गलत है। கேக்குற அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, इसको सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, என் பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय बच्चे लोग, நீங்க இப்படி பண்ணாதீங்க. आप ऐसा मत करिए। இப்படி தகப்பன்கிட்ட நீங்க பிளாக்மெயில் பண்ணாதீங்க. ऐसा पापा को ऐसा मत करिए, विरोध में खड़े मत होइए। உங்க அப்பாக்கு தெரியும், அம்மாக்கு தெரியும் எது சரி எது தவறுன்னு. मेरे पापा मम्मी को मालूम है क्या गलत है क्या सही है। Let them decide your future. आपका जीवन के प्रति वो लोग निर्णय ले, ஏன்னா உனக்கு அந்த புத்தி பத்தாது. क्योंकि आपका जीवन में आपका बुद्धि काफी नहीं है जीवन का निर्णय लेने के लिए। இவன் புத்தி தெளிஞ்சு வந்தான். उन्होंने अपने आप में आया, அவன் வந்த உடனே வந்து என்ன செய்றான்? उन्होंने बुद्धि चेंज होके मन परिवर्तित होके आ रहा है। 17 ல இருந்து படிங்க. अभी 17 वचन से हम लोग पढ़ने के समय 17 ல இருந்து 20 வரை. 17 वचन से लेके 20वां वचन तक 21. 21। जब वह अपने आंगन में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। இப்பதான் அவனுக்கு புரியுது. अभी समझ में आ रहा है। அவன் வீட்ல என்ன நடக்குதுன்றது புரியுது. अभी उसको समझ में आ रहा है पापा के घर में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। என் வாலிப பிள்ளைகளே, मेरे जवान बच्चे लोग, உங்களுக்கு திருமணமாகி உங்களுக்கு பிள்ளைகள் ஆன பிறகுதான் आपको शादी होके आपको बच्चा होने से உங்களை ஏன் கண்ட்ரோல் பண்றோன்றது தெரிய ஆரம்பிக்கும். आपको समझ में आएगा आपको क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं। அப்ப வரை தெரியாது. तब तक आपको समझ में नहीं இப்ப आएगा। எங்க நடக்கு? अभी यहाँ क्या हो रहा है? அவன் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான். उन्होंने सोचने लगा, வீட்டு நிலைமை யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான். घर का परिस्थिति को सोच रहा है। அதுவரை பாரமா இருந்த அந்த வீடு, अभी तक उसके लिए बहुत बोझ के साथ रहने वाला घर, அதுவரை கஷ்டமா இருந்த வீடு, अभी तक पापा का घर उसके लिए बहुत गंभीर रीति से सोचने वाला उस घर, அவனுக்கு ஆசீர்வாதமா தெரிய ஆரம்பிக்கும். अभी उसको लग रहा है तो मेरे लिए आशीष का घर मेरा पापा का ही घर है। பாருங்க, இப்பதான் ஆசீர்வாதமா தெரிய ஆரம்பிக்கும். अभी उसका सोच में आ रहा है मेरा पापा का घर है मेरे लिए आशीष का घर है। கெட்டிக்கிட்டு போன பிறகுதான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் அப்ப வீடு எவ்வளவு நல்லது. सबको मालूम होगा एक दिन तो परमेश्वर जाने के लिए रखेंगे, आप शादी होने के जाने के बाद पता चलेगा पापा का घर कितना आशीष के घर के रूप में था। எல்லாரும் யோசித்துக்கிடுங்க. सब लोग सोचिएगा, எல்லாரும் யோசித்துக்கிடுங்க. सब सोच लीजिए, அப்ப ஏன் இப்படி இருக்கிறான்னு சொல்லி உங்களுக்கு அப்பதான் புரியும். तब पता चलेगा बाप क्यों ऐसा रहा। சோ இங்க என்ன நடக்கு? அப்பன தகப்பனுடைய வீட்டில் உள்ள ஆசீர்வாதத்தை நினைவு கூறுகிறார். तब इन्होंने स्मरण कर रहा है पापा का घर का आशीष कैसा रहा। என்ன செய்யறான்? 18. अभी 18 वचन उन्होंने क्या कर रहा है? मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। यहाँ now he is taking a decision. अभी उन्होंने निर्णय ले रहा है और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। 20, 20. तब वह उठकर बस first he is taking a decision. सबसे पहले उन्होंने निर्णय ले रहा है, நான் இப்படி செய்வேன்.
अपने आप में आने के बाद निर्णय ले रहा मैं ऐसा करूंगा, நான் திரும்பி தகப்பனிடத்துக்கு போவேன், मैं फिर वापस पापा के पास जाऊंगा, அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்பேன், उसे क्षमा मांगूंगा, உமக்கு விரோதமா பரத்துக்கு விரோதமா பாவம் செய்தேன் என்று அறிக்கையிடுகிறேன், तेरे विरोध में स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया करके अंगीकार करूंगा, உங்களுடைய குமாரன் சொல்றதுக்கு நான் லாயக்கு இல்லை, तेरा बेटा करके कहने के अभी लायक मैं नहीं हूँ, ஒரு கூலிக்காரனா என்ன வச்சுக்கோங்க, அது போதும். ये कूली के रूप में मुझे रख रहे वो काफी है। இப்ப நான் அறிஞ்சுக்கிட்டேன் अभी मैं जान लिया உண்மையான சுதந்திரம் என்னன்னு சொல்லி. सच्चे स्वतंत्रता क्या है। இப்ப நீங்க அடிச்சா நான் வாங்கிப்பேன், अभी तुम्हारे से मैं ले लूंगा, எனக்கு இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு உண்மையான சுதந்திரம் என்னன்னு சொல்லி. अभी मैं तो समझ लिया वो सच्चे स्वतंत्रता क्या है। அவன் உண்மையான சுதந்திரம் என்னன்னு அறிஞ்சதுனாலதான் திரும்பி வந்தான். वो सच्चा स्वतंत्रता क्या है करके समझने के चलते वापस आया। எந்த வீடு அவனுக்கு டென்ஷன் உருவாக்கிச்சோ कौन सा घर उसके लिए टेंशन के रूप में रहा, அது அவனுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கு. वही घर उसी के लिए आशीष के रूप में बदला। ஒரு சைக்காலஜி சொல்லுவாங்க, एक साइकोलॉजी बोलते हैं, ஒரு சின்ன வயசுல அந்த 5 வயசு 6 வயசுல ஆகும்போது 5-6 साल होने के समय அவங்க அப்பா தான் பிள்ளைகளுக்கு ஹீரோவா இருப்பாங்க. बच्चा लोग के लिए पापा हीरो लगते हैं। அப்புறம் அந்த ஹையர் செகண்டரி அந்த 10th 11th 12th எல்லாம் போன பிறகு उसके बाद टीनेज में बच्चा लोग जाने के बाद உள்ளதுல விரோதி வந்து அவங்க அப்பனா தான் இருப்பான். उसका विरोधी पापा ही दिखते हैं। முதல்ல ஹீரோவா இருப்பான், सबसे पहले हीरो दिखते हैं, அப்புறம் வில்லன் ஆயிடுவான். उसके बाद पापा विलन बनते हैं, அப்புறம் வந்து வயசாக ஆக उसके बाद उम्र होते होते அப்புறம் வந்து அப்பனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. उसके बाद उन लोग बोलेगा पापा को कुछ नहीं मालूम है। அப்புறம் அவங்களுக்கு திருமணமாகி उसके बाद उन लोग को शादी होगा, பிள்ளை குட்டி வந்த பிறகு बच्चा लोग आने के बाद எங்க அப்பா தான் எனக்கு ரோல் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. उसके बाद उन लोग बोलेगा मेरा बाप मेरे लिए रोल मॉडल எங்க है, அப்பா இருந்தாரு அப்படி இருந்தாரு, मेरा पापा थे ना वैसा थे, எங்க அப்பா இருந்தாரு அப்படி இருந்தாரு. मेरा पापा ऐसा था। ஏன்னா எல்லாருக்கும் கல்யாணம் கட்டினாதான் புத்தி தெரியும். क्योंकि सबको शादी होने के बाद बुद्धि आएगा, शादी होगा तब में बुद्धि आएगा, शादी होने होगा तब बुद्धि आएगा। அப்புறம் கல்யாணம் கட்டினா அவன் புத்தி தெரிஞ்சிடும், अपने आप में आ जाए। शादी होने के बाद अपने आप में आएगा, आना ही है। नहीं है। So இங்க என்ன நடக்குது? अब यहाँ क्या हो रहा है, அவன் முதல்ல நினைக்கிறான், वो पहले सोचा அவன் எழுந்து புறப்பட்டு போறான். फिर उठ के उजारा। Many times we used to think of taking a decision, अनेक समय में हम लोग सोचते हैं निर्णय लेना है, but we never take decision. लेकिन कभी हम लोग निर्णय नहीं लेते हैं। निर्णय எடுக்கணும்னு சொல்லி நினைப்போம், अगर निर्णय लेना है करके सोचते हैं, ஆனா நம்ம செய்ய மாட்டோம். लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। இவன் செய்யலாம், लेकिन इन्होंने किया, போறான், उन्होंने किया, அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது? अभी उनको क्या मिल रहा है। 20 இருந்து படிங்க. 20 से पढ़ेंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। बस children used to reject parents, but parents never reject. बच्चा लोग पापा लोग को मम्मी लोग को तिरस्कार करता है, लेकिन पेरेंट्स कभी भी बच्चा लोग को तिरस्कार नहीं करते हैं, Never they reject people. कभी भी लोग रिजेक्ट नहीं करते हैं। கொஞ்ச நாள் சும்மா இருப்பாங்க, कुछ दिन के लिए चुप रहेंगे, பேசாம இருப்பாங்க, बातचीत नहीं करेंगे, ஆனா பேசாம இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள அழுதுட்டு. लेकिन बातचीत तो नहीं करते हैं, लेकिन अंदर रोते रोते रहते हैं। இன்னைக்கு உனக்கு அப்பா உனக்கு வில்லனா இருக்காரா? हो सकता है आज तेरा बाप तेरे लिए विलन के रूप में दिख रहा है இன்னைக்கு क्या, உனக்கு அம்மா வில்லனா இருக்காங்களா? तेरा माँ तेरे लिए विलन के रूप में दिख रही है क्या। கருணையானவர்களே, मेरा प्रियो, ஒரு நாள் நீ கண்ணீர் விடுவா, एक दिन रोना ही है, ஒரு நாள் நீ கண்ணீர் விடுவா, एक दिन रोएगी, அன்னைக்கு தெரியும் तब पता चलेगा எதுக்கு உங்க அப்பா அம்மா விட்டு சொன்னாங்க. क्यों पापा मम्मी ने तुझे ऐसा चिताया। நீ எழுந்து புறப்பட்டு போ, अभी उठ के पापा के पास जाओ, தேவனிடத்துல போ, परमेश्वर के पास जाओ, உன்னுடைய அந்த அந்தரங்க பாவத்தை சொல்லி நீ மன்னிப்பு கேளு. परमेश्वर के पास जाके गुप्त के पापों को अंगीकार करके परमेश्वर से क्षमा मांगना है। நீ ரட்சிக்கப்படணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார். परमेश्वर आप उद्धार पाना करके चादर करते हैं। கல்லறை லாசருடைய கல்லறை அடைக்கப்பட்டது, लासरस को रखा हुआ कबर बंदे था, அதுல உள்ள 4 நாளா அழுகி போன பிணம், उसके कबर का अंदर 4 दिन से सड़ा हुआ उस शव वहां है, उसका शरीर। சொல்லுறா அவங்க அக்கா சொல்றா, இதை எடுத்தா சகோதரி சொல்றா, இதை எடுத்தா நானுமே. उसका बहन यीशु मसीह ने पत्थर हटाओ करके बोलने से उन्होंने बोल रही है प्रभु इसको हटाने से महक आएगा। ஆமா, என்னுடைய உங்களுடைய வாழ்க்கை கல்லறைக்குள்ள இருக்கிறது வரை நார்ம அனுபவம் தான். ये सच है, हमारा जीवन कब तक कबर का अंदर है, पाप भरा हुआ उस कबर का अंदर है, तब तक उस दुर्गंध का उस जीवन है। அந்த கல்லறையுடைய கல் அகற்றப்பட வேண்டும். उस कबर का पत्थर
हटना है। ஏன்னா அந்த கல்லு இருக்கும் பொழுதே ஆண்டவருடைய சத்தம் அந்த பிணத்துக்கிட்ட போயிடுச்சு. वो पत्थर रहने के समय में ही परमेश्वर का आवाज उस लाजरस मरा हुआ के पास पहुंचा। அங்க உயிர் தெழுந்தாச்சு. वहां तो उन्होंने जी उठ गया अंदर அங்க में, உயிர் தெழுந்தாச்சு. वहां जी उठ गया। ஆண்டவருடைய வசனம் வந்து உயிர் தெழ வைத்து விட்டது. लाजरस को अंदर रखा हुआ सड़ा हुआ लाजरस का जीवन में उसका वचन, अरे उस पत्थर को हटाओ। उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 11 अध्याय उसका 41 को पढ़ेंगे। 39 से लेके पढ़ना। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। ஒரு நிமிஷம். एक मिनट। यहाँ இங்க வந்து நம்ம பார்த்தோம் சொன்னா கல்லறைய நீங்க அதாவது கல் புரட்டப்படாத வரை தேவனுடைய காரியம் நடக்காது. यहाँ हम लोग एक बात हम लोग के जीवन में समझने की आवश्यकता है। यहाँ का अनुसार कब तक पत्थर हटाया नहीं जाएगा तब तक परमेश्वर का काम जीवन में होने वाला नहीं है। अंदर तो सड़ा हुआ बात है। क्या है, परमेश्वर चाहते हैं वो प्रकट हो जाए। वो परमेश्वर त्यागत कर रहे हैं, तुम पत्थर को हटाओ, उस दुर्गंध प्रकट हो जाए, तब तेरे जीवन में आशीष को उस पत्थर हटने से ही परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का आश्चर्य काम प्रकट होगा। கல்ல எடுத்து போட்டாங்க. अभी पत्थर को हटा दिए। எடுத்த उन्होंने என்ன ஆகுது? अभी पत्थर हटाने से परमेश्वर क्या कर रहे हैं? ஜெபிக்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह ने वहां प्रार्थना कर रहे हैं। வெளியே வான்னு சொல்றார். परमेश्वर प्रार्थना करके बोल रहे हैं, तुम बाहर आ जाओ। கருமையான தேவஜனம். मेरे प्रिय लोग, இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற அப்படிப்பட்ட கல்லுகள் ஏதா இருந்தாலும் आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में रहने वाले कैसा भी तरीका का पत्थर हो, அதை எடுத்து போட வேண்டியது அவசியம். उसको हटाने की आवश्यकता। இன்னும் இண்டிபெண்டன்ஸ்ன்ற பேர்ல நீ செய்துகிட்டு இருக்கிற தவறுகள், आज भी अभी तक स्वतंत्रता के रूप में करने वाले सारे गलती कामों को எடுத்து போட வேண்டியது அவசியம். उठा के फेंकना आवश्यकता है। எடுத்து போட்டீங்கன்னா यदि आप उठा के फेंकेंगे ஆண்டவர் கிரியை तब परमेश्वर जीवन में काम करेंगे। நம்ம ஜெபிக்கலாம். हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने साफ रीति से इस महीना में हम लोग से बातें करते आ रहे हैं। केवल यहाँ नहीं है, हम लोग कितना लोगों को जूम मीटिंग में इनवाइट किए, उन लोग भी यही बातों से प्रचार करते आ रहे हैं। पिछले दिनों में एक बेलशात नाम के एक प्रचारक ने उन्होंने एक वचन को बोला, परमेश्वर ने मंदिर को, सेवकाई को, आराधना को नापने के लिए उस चीज को परमेश्वर ने हाथ में दे चुके हैं। परमेश्वर हाथ में लेके हमारे सामने आके हमें जीवन को नापने के समय, उस मंदिर को नाप के देखने के समय, हमारा सेवकाई को नापने के समय, हमारा पारिवारिक जीवन को नापने के समय, हमारा आराधना करने के तरीका को नापने के समय परमेश्वर हमसे आपसे क्या प्राप्त करेंगे। आज का वचन भी यही है। परमेश्वर नापी को लेके हमारा सामने खड़े हैं। मंदिर को नापने के समय, सुबह के समय में नहाते नहाते मेरा सामने एक शब्द से परमेश्वर ने बातें किया, मंदिर में लेना देना चल रहा है। तुम क्या नहीं जानते हो, तुम परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में लेना देना करने वाले कितना सिंहासन को रख के लेना देना कर रहे हैं। परमेश्वर नाप के छिता रहे हैं। अनेक लोगों के जीवन में पारिवारिक जीवन टिक नहीं है। परमेश्वर परिवार को नाप के देखने के समय वहाँ अशांति, वहाँ सड़ा हुआ बातें, पत्नी अलग से एक रूम में, पति दूसरा रूम में, पति तो एक घर में, पति अपना पापा का घर में, मम्मी पत्नी ने दूसरा माँ का घर में। ऐसा एक परिस्थिति आज पारिवारिक जीवन में, चाहे सेवक हो चाहे विश्वासी हो, उन लोगों का परिवार में पाया जा रहा है। परमेश्वर नाप के देके चिता रहे, सुधरो। और तीसरा, परमेश्वर हमारा सेवकाई के जीवन को, हमारा आराधना करने के जीवन को परख के परमेश्वर बोल रहे हैं, इतना साल इतना दिन तुम किसके लिए आराधना किया, किसके लिए तुम सेवा किया। परख के परमेश्वर देखने के समय परमेश्वर वहां सड़ा हुआ बातों को देख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं, पत्थर को हटाओ। हम लोग को लगेगा मेरा जीवन में आशीष
आ रहा है, उस आशीष श्राप के रूप में बदलने के पहले आंसू के रूप में हो सकता है परमेश्वर आशीष करके दिखा कि हमारा आंसू की जिंदगी को शुरू कर सकते हैं। आने के पहले सुधरना मेरा कर्तव्य है। परमेश्वर नाप के देखने के समय मंदिर को कलंक मत करिए। सोच रहे मैं कर रहा हूँ, कोई किसी को पता नहीं है। इसलिए इस महीना शुरू दिन में परमेश्वर ने बोल दिए सुधरो सुधरो। अपने आप में आने से पता चलेगा मैं कौन हूँ। अपने आप में आने की आवश्यकता है। मेरा प्रिय उसको सुनने वाले, आप क्या निर्णय लेना चाहते हैं? इस महीना में परमेश्वर 3 चीज को हमारे जीवन में चार्ट करते हैं। सुधरो, चुनाव करो, निर्णय करो। जीवन का चुनाव सही रहेगा, जीवन का सुधार ठीक होगा। जीवन का सुधार ठीक होने से सही निर्णय लेंगे। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, तो हम लोग से बहुत प्यार कर रहे हैं प्रभु। हम लोग अपने जीवन में आशीष करके सोचने वाला उस बातें हमारे लिए आंसू का कारण नहीं बनने पाए। सुना पुत्र का जीवन उन्होंने अपने जीवन में सोचा, मैं पापा से अलग होके ऐसा जीवन बिताऊंगा तो मेरा जीवन बहुत आशीष रहेगा करके सोचने वाला बातें वो लिया हुआ निर्णय प्रभु जी उसी के लिए श्राप का कारण बना, कमी का कारण बना। प्रभु स्वर के पीछे जाना पड़ा, खाने के लिए तड़पना पड़ा। प्रभु उसके सामने बैठने वाला खाना लेकिन इसके लिए नहीं मिल रहा है। ऐसा एक जिंदगी में जाने के पहले हाँ मैं पापा से छुटकारा प्राप्त कर लिया करके सोच के आजादी होने वाला बात है। उड़ा पुत्र के लिए प्रभु आंसू का कारण बना। वैसा किसी के जीवन में नहीं बने पाए। आपके हाथों में तामे रहते हुए तो लोगों के लिए दिया हुआ प्रभु मम्मी पापा का अधीनता में रहते हुए इतना दिन का कुकर्म को छोड़ते हुए तो रखा हुआ स्थान में रह के प्रभु उस परिवर्तन में आके उसके बाद नया जीवन को शुरू करने के समय तो आशीष को घोषणा करेंगे। इस बातों को प्रभु समझने के बुद्धि और ज्ञान को इसको सुनने वाले एक एक जीवन में तू देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि किसी को भी तू प्रभु मौका देने बिना कुछ भी बातें जीवन में अनुमति नहीं करते हैं। यहूदास को भी तूने मौका दिया लेकिन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसके अंदर शैतान घुसा हुआ था। शैतान का अनुसार कार्य किया, जीवन नष्ट हुआ। ऐसा हम लोग नहीं होने पाए। प्रभु तू मौका देने के समय सुधरने के लिए हम अपने आप को बदल नहीं पाए। क्या क्या क्षेत्र में कहाँ सुधरना है, उस क्षेत्र से उठने के लिए, परिवर्तित होने के लिए उस अनुग्रह को तू देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मिलने वाला आशीष प्रभु आशीष के रूप में रहने के लिए सुधर नहीं पाए। यदि हम सुधरेंगे नहीं प्रभु, उसी के चलते आंसू जीवन भर प्रभु हम लोग नहीं बहाने पाए। एक एक जन को सुधारते हुए तू रखा हुआ आशीष में प्रवेश करने के लिए अनुग्रह की। क्योंकि साल में इस महीना में तू वाणी को दिया सुधरने वाला के लिए तू रखा हुआ आशीष है। यदि सुधरेंगे नहीं उस आशीष प्रभु तो तूने बारंबार इस बातों से बातचीत के लिए उठकटारे और कांटों को उत्पन्न करेगा। उठकटारे और कांटों को प्राप्त करके जीवन को हम लोग प्रभु हम लोग पार नहीं कर सकते। इस बातों को तूने चिताया, धन्यवाद देते हैं। सुधरते हुए प्रभु तू रखा हुआ आशीष में शामिल होने के लिए अनुग्रह कर प्रभु। ऐसा तू कर दिए प्रभु, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना शुक्र आपसे मांगते हैं। आमीन।